So yesterday we started with this topic, that is theories of acid base indicator, and that we learned that there are two types of the theories. One which is put forward by Ostwald, so it is known as a Ostwald theory, and second which is remaining, and we will have a more focus on this theory. So this theory is known as a resonance theory or quinonoid theory. So Ostwald theory is consider that all the acid base indicator are themselves weak acid or weak bases, and this weak acid and weak bases have two different color in their conjugate base and in acid form. Okay, so the two different appearances may be two color or maybe one form colorless, another form colored, is because the presence of ionization and unionization in this weak acid and weak bases. And most of the indicators in common use are intensely colored, can be used in a very dilute solution in such a small quantity that the equilibrium that is going on between the chemical which is actually under the titration, so that equilibrium is not disturbed by addition of this weak acid or weak base indicators. Now, so this is what the basic concept, the equation which you can represent for your weak acid indicator. So when H ion is a unionized form of indicator, it undergoes ionization, forms H plus and ion negative. If suppose in such a solution, in a weak acid solution, okay, यानी कि आपके पास में एक इंडिकेटर है जो कि वीकली एसिड है, और ऐसे वीकली एसिड के सॉल्यूशन में इफ़ यू आर एडिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड, so what will happen, the strong acid will bring more H plus ion in a solution, and this H plus ion will suppress the degree of dissociation of weak acid indicator, and because of that most of the indicator will be suppressed into its unionized form, and in unionized form the indicator will show its a different color as compared to that in a ionized form. And in contrast, if we add alkali solution to this weak acid indicator, so what will happen, the alkali will going to promote the removal of hydrogen ion from the unionized form, and this alkali will shift the equilibrium in a forward direction, that is towards the ionization form, and the indicator will now show the appearance of color that that is represented by their by indicator ionized form. So the equation which comes lastly is pH is equal to pKin plus log of ionized divided by unionized form for the weak acid indicator, and for weak basic indicator pH is equal to pKw minus pKinB minus log of ionized डिवाइड बाय अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ इंडिकेटर. ठीक है, तो दोनों ही केस में आप देखिए इक्वेशन जो है पीएच और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर के साथ में कोरिलेट किया जा रहा है. ठीक है, ए और बी जो सफिक्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं पी के आई एन के साथ, वो ए यानी कि एसिड है, पी यानी कि बेस है. सो इस तरीके के दो इक्वेशंस जो बनते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए हेंडरसन हेज़लबेक इक्वेशन. Now what is the use of this Henderson-Hazelbeck equation? Generally it says that कि जो इक्विलिब्रियम में कलर चेंज होता है इंडिकेटर का. नाउ वी नो, एग्जांपल लेते हैं कि फिनोफ्थलीन जो है, ओके, नाउ द फिनोफ्थलीन इज हैविंग अ वन फॉर्म दैट इज पिंक कलर और इंटेंसली रेड कलर, ओके, एंड अनदर फॉर्म दैट इज अ कलरलेस. नाउ फिनोफ्थलीन इज कंसिडर्ड टू बी एज ए वीक एसिड इंडिकेटर. सो तीन फेजेस आते हैं एक्चुअली कलर चेंज में. एक रहता है कलरलेस फॉर्म, एक रहता है रेड फॉर्म फॉर द फिनोफ्थलीन, ऐसे ही बाकी इंडिकेटर्स के लिए भी रहता है. ओके, तो वी आर टॉकिंग राइट नाउ फॉर द फिनोफ्थलीन बिकॉज यू नो द फिनोफ्थलीन. सो एक रहता है कलरलेस फॉर्म, एक रहता है रेड फॉर्म और एक रहता है पिंक फॉर्म. ठीक है, ये जो तीनों कलर अपीयरेंसेस रहते हैं फिनोफ्थलीन के, ये एक रेंज बाउंड रहता है. नाउ यू कैन सी व्हाट इज दैट रेंज. The range is called as the pH range, and it is 8.3 to 10 for the phenolphthalein. Now what it is said, like अगर कोई solution है जिसका pH 8.3 के below है, if you have any solution
whose pH is below 8.3, and in that solution if you add 2 drops of phenolphthalein, the phenolphthalein will remain colorless. ठीक है, अगर कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका pH 8.3 के बिलो है और उसमें अगर आपने फिनोफ्थलीन ऐड कर दिया, व्हाट विल हैपन, द सॉल्यूशन विल रिमेन कलरलेस. वही अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसका pH 10 से अबव है, 10.1, 2, 3 एंड सो ऑन 14 तक, ओके, सो 10 से अबव है और उसमें अगर आपने फिनोफ्थलीन का एक ड्रॉप भी ऐड कर दिया, 2 ड्रॉप्स भी ऐड कर दिया, व्हाट विल हैपन, द सॉल्यूशन विल हैव अ इंटेंस रेड कलर. एंड अगर कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इस पर्टिकुलर रेंज में है, दैट इज 8.3 टू 10, एंड इसमें अगर आपने फिनोफ्थलीन ऐड किया, देन फिनोफ्थलीन विल हैव अ पिंक कलर. सो दिस इज हाउ the indicator actually behaves, and this property of indicator is generally used in a titration. So you can see the indicator is having a certain range. Now this range is also is known as a pH range, and it is also known as a color change interval of an indicator. ठीक है, दो नाम इसके लिए जा सकते हैं, इसको pH range भी बोला जाता है या तो फिर color change interval of an indicator. तो ये फिनोफ्थलीन का रेंज हो गया. नाउ व्हाट अबाउट मिथाइल ऑरेंज, द रेंज इज 2.9 to 4.6. For methyl red, the range is 4.2 to 6.3. For phenol red, the range is 6.8 to 8.4. And for thymophthalene, the range is 9.3 to 10.5. कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है हाउ द मिथाइल ऑरेंज विल गोइंग टू बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ द पीएच? यस, एनीवन? जैसे मैंने अभी फिनोफ्थलीन का बिहेवियर बताया, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी हाउ द मिथाइल ऑरेंज विल गोइंग टू बिहेव? Sir, Yes, anyone can start. sir, if the pH of that solution in which we are adding the methyl orange Hmm. is less than 2.9, then the methyl orange then at that time the methyl orange will be colorless. वेयर, वहाँ कलरलेस लिखा है मिथिल ऑरेंज में? हाँ मिथाइल ऑरेंज का क्या दिया है रिप्रेजेंटेशन? इज इट अ हाँ कलरलेस? नहीं वो कलरलेस नहीं है, लेकिन सर अगर सर लेकिन सर वो रेड हो जाए, मतलब अगर एसिडिक सोल्यूशन में अगर हम उसे ऐड करेंगे तो वो रेड हो जाएगा और बेसिक सोल्यूशन में येलो हो जाएगा. हाँ, तो सर मुझे लेकिन फिर रेंज के हिसाब से बताओ ना, ना व्हाट दिस रेंज इज इंडिकेटिंग. मैंने फिनोफ्थलीन का बोला, आपको समझ में आया? हाँ सर. क्या समझ में आया फिनोफ्थलीन का? रिपीट दैट, फिनोफ्थलीन. सर अगर हमने फिनोफ्थलीन अगर ऐड किया एक आधे सॉल्यूशन में और उसका पीएच 10 से कम है तो वो कलरलेस हो जाएगा. गलत, यू आर रॉन्ग. एनीवन एल्स? और कोई ट्राई करेगा? निखिल, रौनक, वैष्णवी? सर यस. सर अगर हम फिनोप्थिलीन अगर सॉल्यूशन में डालते हैं, अगर उसका पीएच 8.3 से नीचे रहा तो कलरलेस होगा. अगर 8.3 और 10 के बीच रहा तो उसका कलर पिंक रहेगा. अगर 10 से उसका पीएच रेंज ज्यादा रहा तो वो रेड कलर रहेंगे. दैट इज व्हाट इट्स सेइंग, द टेबल इज इन फ्रंट ऑफ यू. एंड वही मैंने आपको अभी बताया. ये किसने आंसर दिया अभी? सर राधा. Radha, correct. Okay. So the what Radha said, now you apply for the rest of the indicator. So Radha, can you explain what will be the behavior for the methyl orange? Yes sir. If solution is we are adding methyl orange in the solution and the pH range is below the 2.9, then we will get red color. If the pH range is between 2.9 and 4.6, then the orange color will be orange. And if above the 4.6 the pH range is there, then we get the yellow color. Exactly.
ठीक है, और कोई अब मिथाइल एराइड का एक्सप्लेन कर सकता है अपार्ट फ्रॉम राधा? सर मुझे समझा, मैं एक्सप्लेन करूं? हम्म सर अगर मिथाइल रेड मतलब अगर सॉल्यूशन का पीएच 4.2 से कम रहा तो मिथाइल रेड रेड कलर देगा। हम्म और अगर सॉल्यूशन का पीएच 4.2 टू 6.3 के बीच में रहा हम्म तो मिथाइल रेंज इंटरमीडिएट ऑरेंज कलर देगा। हम्म और सॉल्यूशन का कलर इफ इट इज सॉल्यूशन का पीएच इफ 6.3 से ज्यादा है तो वो येलो कलर देगा। हम्म हाँ सर, मतलब ये जो पीएच रेंज रहती है वो इंटरमीडिएट कलर के लिए रहती है। सभी के लिए है ये रेंज। ईच एंड एवरी इंडिकेटर इज बिहेविंग द चेंज इन कलर बिटवीन दिस पर्टिकुलर रेंज। ठीक है। हाँ सर। यू नो द यूज ऑफ लिटमस पेपर। यस सर। कल आपने ही शायद बताया था कि व्हेन द रेड हाँ। लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू ब्लू इट इज इंडिकेटिंग दैट सॉल्यूशन इज बेस। यस सर। When the red litmus when the litmus paper converts from vice versa Bluetooth. ब्लू टू रेड, हाँ। तो वो हाँ ब्लू सॉल्यूशन रहेगा एसिडिक। ठीक है। एसिडिक। तो लिटमस पेपर क्या है? इट इज़ नथिंग बट वन इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाइंग द pH ऑफ अ सॉल्यूशन, फॉर आइडेंटिफाइंग वेदर द सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। यस। हाँ यस सर। Similarly, now the indicator can also be used. Which indicator? This indicator which are tabulated here, this can be यस। used to identify what is your solution is it a acid, is it a base, and what is going to be the range of that acid and base, है ना? हाँ सर। तो दैट इज़ द यूज़। तो हमारे टाइटरेशन में भी तो यही होता है। सो व्हेन वी परफॉर्म द टाइटरेशन ऑफ HCl वर्सेस NaOH or PHP versus NaOH, what is happening? Initially the solution is acidic because of the presence of HCl or PHP. So in that case the phenolphthalein remain colorless. यस सर। When you titrate with sodium hydroxide solution, what happens? The sodium hydroxide ऐड करने की वजह से PHP और HCl जो भी रहता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके, सो आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन इफ द pH कम्स इन बिटवीन 8.3 to 10, तो फिनोफ्थलीन क्या करता है? पिंक कलर करता है। अगर आप कंटिन्यू करोगे एडिशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का फ्रॉम द ब्यूरेट इनटू द कोनिकल फ्लास्क, सो व्हाट विल हैपन? एक पॉइंट एक ऐसा रेंज आ जाएगा कि अब pH 10 के अबव चले जाएगा और वो फिनोफ्थलीन पिंक नहीं रहेगा, इट विल गिव अ रेडिश अपीयरेंस, राइट? तो इस यस सर। तरीके का बिहेवियर है। ये बिहेवियर किसने एक्सप्लेन किया? तो फिर किसने एक्सप्लेन किया? सो दिस इज एक्सप्लेन बाय द थ्योरी दैट इज कॉल्ड ऑस्वाल्ड। Ostwald ऑस्टोल्ड। theory. तो ऑस्वाल्ड ने यही बताया ना कि ये रेड कलर, पिंक कलर और ये जो कलर है कलरलेस ही क्यों आता है? तो उसने आंसर सिंपल ये बताया कि फिनोफ्थलीन वीक एसिड इंडिकेटर है। ठीक है। तो जब वीक हाँ। एसिड इंडिकेटर इन प्रेजेंस ऑफ पीएचपी रहता है, इट रिमेन्स इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। यस सर। और जब वो वीक एसिड इंडिकेटर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है तो वो अपना कलरलेस फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। वहीं अगर आप अल्कली ऐड करते हो, दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो व्हाट विल हैपन? द अल्कली प्रोमोट्स द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम दैट फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन से हाइड्रोजन रिमूव होते जाएंगे और वो फिनोफ्थलीन आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो द सोल्यूशन एक्वायर्स द आयोनाइज कलर। इसलिए फिनोफ्थलीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इट गिव्स अ पिंक कलर। एंड अगर वो बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो इट में अचीव द pH अबाउट 10 एंड इन उस केस में फिनोफ्थलीन में हैव अ रेडिश अपीयरेंस। ठीक है। ऑस्ट्रेल की हाँ सर। थ्योरी का आंसर समझ में आया? यस सर। नाउ इस इक्वेशन का यूज़ क्या है? द इक्वेशन का यूज़ ये है कि वो जो रेंज आ रही है, इफ़ यू काउंट द वैल्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस टू रेंज, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो योर आंसर विल लाइज इन बिटवीन नियर अबाउट 2। 10 माइनस 8.3 कितना आएगा? अगर 10 में से 8.3 माइनस किए तो कितने बचेंगे बेटा? 2.7। 6.7। चेक करो एक बार। 10 minus 8.3. If you have a calculator in your mobile, you can use 1.7. 1.7. 1.7. वन Six Direct पॉइंट। 1.7. 1.7. 4.6 1.3. minus 2.9. 4.6 minus 1.1. 2.9. सर 1.7. 1.5 1.1. 1.7। 1.7.
ठीक है, 6.3 माइनस 4.2, 2.1. 2.1, 8.4 माइनस 8, 8.4 माइनस 8.6, minus Uh, 0.2. हाँ, न- 8.4 माइनस नहीं माइनस मैं 8.6, सर, सॉरी 1.6. 8.4, ये अपर वैल्यू है 1.6. माइनस लोअर वैल्यू 1.6, सर 1.6 आता. देन 10.5 माइनस 9.3, 1.2. ठीक है. 1.2. सो जो रेंज है, अब देखिए, इस एक लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड लाइज इन अ रेंज ऑफ 1.6 टू 2.1. हाँ. एंड अगर आप और बहुत सारे इंडिकेटर्स की लिस्ट निकालेंगे, यू विल फाइंड दैट द रेंज, ओवरऑल एवरेज रेंज ऑफ दिस कलर चेंज इंटरवल इज इन बिटवीन द 2 यूनिट्स, है ना, 2 यूनिट, पीएच का 2 यूनिट का डिफरेंस आता है, राउंड फिगर, क्योंकि अभी जो डिफरेंस आ रहा है वो 1.6 से 2.1 का रेंज है. तो मैं एक एवरेज बताता हूँ, एवरेज कितना आता है सारे इंडिकेटर का, 2 यूनिट का पीएच रेंज का डिफरेंस आता है. सो हियर द आंसर फॉर दिस 2 यूनिट क्यों आया ये डिफरेंस, तो ये यहाँ से आता है. सपोज इस इक्वेशन में इफ़ यू पुट यू नो this ionized concentration is equal to 10, and if you put the unionized concentration is equal to 1, so what will be the equation? अगर आपने ये जो कॉन्सेंट्रेशन है आयन माइनस नेगेटिव, इसकी वैल्यू 10 पुट कर दी, और आपने एच आयन का जो वैल्यू है वो कितना पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, क्या आ जाएगा इक्वेशन? इक्वेशन विल बी सर चेंज इनटू pH इज इक्वल टू सर pKi pH equals to put in. pH is equals to pK to the in base. प्लस, हाँ सर. अब आयन की वैल्यू अपन ने 10 Log ली ना. 10. 10 कर दिया यहाँ पे, 10 डिवाइड हाँ. बाय 1, सो लॉग ऑफ 10, सर हाँ व्हाट log इज द 10 Log 1 लॉग हो of ऑफ 10 10? जाएगा. होगा. सर. Log 10 1 होगा. 1. सो इक्वेशन क्या आ जाएगा, pH इज इक्वल टू pKi प्लस 1, pH. Yes sir. ठीक है. Yes, sir. अब रिवर्स कर दो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो ठीक है. सो पहले केस में आ जाएगा pH इज इक्वल टू pKin, ठीक है. अब आप समझ सकते हैं, pK प्लस 1 कर देता हूँ, ठीक है. ये पहला केस आ गया. नाउ इक्वल कर दो, सपोज इफ सपोज आयन माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो 1 एंड एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो 1, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन? What will be the equation? If in minus is equal to 1 and hin is equal to 1, so log of 1, what is the value of log of 1? 0. 0. So the answer is pH is 0. equal to pK. PK plus PKIN. 0. प्लस 0 मीन्स वो लिखने की गरज नहीं है. अब रिवर्स कर दो, No, it doesn't matter. इफ सपोज आयोनाइज कॉन्सेंट्रेशन इज 1 एंड एच आयन इज 10, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? 0.5. log of 1 upon 10. What is the log of 1 upon 10? What is the value for log of 1 upon 10? Answer is minus 1. So the equation will change. Yes, sir. बराबर है, Yes sir. ठीक है. अब इस Yes, तीनों sir. इक्वेशन में देखो, सपोज यू हैव दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एनी इंडिकेटर, ठीक है. तो जो भी डिसोसिएशन कांस्टेंट है इंडिकेटर का, ठीक है, उसका जो रेंज है वो +1 एंड -1 में चेंज होते जा रहा है. सो व्हाट सेज, अगर +1 हुआ इसका मतलब आयोनाइज कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अगर -1 हो गया इसका मतलब अनआयोनाइज कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. करेक्ट है. सो दिस इज़ द रीज़न कि जब कॉन्सेंट्रेशन आयोनाइज हो जाता है 10 टाइम्स टू दैट ऑफ द अनआयोनाइज कॉन्सेंट्रेशन, सो इंडिकेटर विल हैव अ pH और pKn that is +1, ठीक है.
एंड वही अगर कॉन्सेंट्रेशन अनआयोनाइज का 10 हो जाता है और आयोनाइज का 1 हो जाता है, देन द इक्वेशन चेंजेस टू pH इज इक्वल टू pKin -1. सो इसीलिए जितने भी सारे इंडिकेटर्स हैं वो 2 यूनिट के रेंज में ही क्या करते हैं, अपना कलर चेंज इंटरवल शो करते हैं, क्योंकि ये 2 यूनिट में ही उसका फॉर्म चेंज हो जाता है. एक बार वो आयोनाइज हो जाता है और दूसरी बार वो अनआयोनाइज हो जाता है. ठीक है, Ananas. सो ये इक्वेशन का इस तरीके से यूज़ किया जाता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थ्योरी, द सेकेंड theory that is called as a resonance theory, quinonoid theory, and it is a very simple theory. What this theory says that it is not considering any equation and all that, but it considers the structures. It considers the structures of that indicator, and what it is saying that the change in the color of an indicator is because of the change in a structure of the structure of that molecule. Now what does change in a structure? The structure may achieve the resonance that chemical part, or the structure may change into the quinonoid form. ठीक है, यानी क्या बोलना है, जो कलर चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है कि जो भी इंडिकेटर रहता है उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं. वो जो इंडिकेटर है वो क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर में क्विनोनॉइड मॉलिक्यूल जो है उसका डेवलपमेंट करता है, या जो वो इंडिकेटर है वो क्या करता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडिकेटर में कलर चेंज आता है. लेट्स सी विथ वन एग्जांपल. You know the structure, you know the phenolphthalein. You know phenolphthalein, all of you? हाँ सर. See, Yes, sir. see structure number 1. यहाँ पे जो structure number 1, it represent the structure of phenolphthalein. You can see this. जी सर. ये Yes, जो sir. structure number 1 है, ये वो किसका structure है? phenolphthalein का. ये पूरा structure phenolphthalein. Phenolphthalein. ठीक है. Now when you add NaOH, जब हम टाइट्रेट करते हैं और अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, ओके, although initially sodium hydroxide will going to react with the HCl or PHP, that is a strong acid, but after all the acid get neutralized, what happens, the next drop of a phenolphthalein will react with next drop of a sodium hydroxide will going to react with phenolphthalein. So what will happen to the phenolphthalein structure? Now see, the small addition of OH minus will break this lactone ring. ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, यू कैन सी बॉन्ड ब्रेक हो गया, और इस रिंग को क्या बोला जाता है, लैक्टोन रिंग स्ट्रक्चर, वो ब्रेक हो गया. सो यू कैन सी नाउ द phenolphthalein is getting somewhat ionized. Now further addition of OH minus, that is alkali, what is happening, now the phenolphthalein exists in a 2 tautomeric structure. This is a A and this is a B. दोनों ही स्ट्रक्चर देखो आइडेंटिकल हैं, एंड दिस टू स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज ए टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टर्म है टॉटोमर्स. ठीक है, टॉटोमर्स समझता है आपको? हाँ सर, मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट. टॉटोमर्स का बेस एग्जांपल है केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. यू नो बेंजीन? यस सर. बेंजीन के Yes. 2 स्ट्रक्चर्स रहते हैं, केकुले के 2 Yes, स्ट्रक्चर sir. रहते हैं बेंजीन के, है ना, हाँ. Yes, sir. and that represent the tautomers. So similarly phenolphthalein exists in a tautomers due to addition of what, sodium hydroxide or alkali, and this A and B represent the tautomers of the phenolphthalein. क्योंकि देखो एक बार क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस इस रिंग में है, और सॉरी ये जो है इस न्यूक्लियस को बोला जाता है क्विनोनॉइड न्यूक्लियस. ये जो क्विनोनॉइड न्यूक्लियस है एक बार इस साइड में है, और दूसरी बार देखो क्विनोनॉइड न्यूक्लियस कहाँ पे आ गया, इस साइड में है, यहाँ पे नहीं था, है ना. तो क्विनोनॉइड न्यूक्लियस इज शिफ्टिंग फ्रॉम दिस रिंग टू दिस रिंग एंड दिस रिंग टू दिस रिंग. सो दिस इज कॉल्ड एज द टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ द phenolphthalein, एंड ड्यू टू the formation of this tautomeric structure, the phenolphthalein changes the color, because जो tautomers रहते हैं वो absorb करते हैं कलर को, जो रेजोनेंस डेवलप होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कलर को, एंड दिस इज व्हाट सेड बाय द क्विनोनॉइड थ्योरी. Got the point? Why the phenolphthalein is changing the color? The phenolphthalein is changing the color is because the phenolphthalein is changing its structure. Initially the phenolphthalein is in a unionized form, but as you add sodium hydroxide, the phenolphthalein gets
converted into its Ionized tautomeric form. Not ionized. Don't use this word ionized. It is converted into the tautomeric form. It develops the resonance, and because of this, the phenolphthalein changes the color. ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. अगर Yes, आपको sir. याद होगा, मैंने एक बार बोला था कि अगर आपने बहुत ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, इफ़ यू ऐड एक्सेस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अगर पीएच है ना 13 के भी अबव चले गया, 14 के पास आ गया, सो फिनोफ्थिलीन अगेन चेंजेस कलरलेस. याद है किसी को? किसी को याद है? ये मैंने बताया था कि फिनोफ्थिलीन एट अ पीएच अबव 13 अगेन चेंजेस कलरलेस. किसी को नहीं याद? सर याद है बट एक्सप्लेनेशन मालूम नहीं है सर। हाँ, एक्सप्लेनेशन मैंने दिया भी नहीं था उस वक्त, ठीक है, बट याद है आपको, मैंने ये बताई थी बात. यस सर, वो वर्चुअल एक्सपेरिमेंट में Yes, बताए थे. sir. हाँ सर, सिर्फ आपने सिर्फ बोले थे सर कि ऐसा होता है। Yes. Now the answer for that question is lies here in the next part of the reaction. Suppose you add excess of sodium hydroxide. If you add the excess of sodium hydroxide, so what happens? The further addition of this excess of sodium hydroxide also breaks the tautomeric structure of the phenolphthalein. And phenolphthalein का वो tautomeric structure जो है वो break हो जाता है. Now you can see both the ring get ionized. पहले के यहाँ पे सिर्फ OH माइनस आयोनाइज था, ठीक है, यहाँ पे भी एक ही साइड में OH माइनस आयोनाइज था, बट इस केस में देखो फर्दर आयोनाइजेशन हो गया, दोनों साइड पे. दोनों साइड में आ गया, तो जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो गया. हाँ. हाँ सर। एंड एज द phenolphthalein lost this tautomeric structure, what will happen? No वो फिर color, से कलरलेस हो जाएगा. फिर से कलरलेस हो जाएगा, एंड दैट इज द रीजन. सो दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाय दिस क्विनोनॉइड थ्योरी विच इज नॉट एक्सप्लेन इन ऑस्वाल थ्योरी. ऑस्वाल ने ये नहीं बता सर सकता. एक बार प्लीज और एक्सप्लेन करना ना सर इसको। मैंने बोला अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में ऐड करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस? सो इट विल ब्रेक द टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर, टॉटोमेरिक न्यूक्लियस, क्विनोनॉइड न्यूक्लियस ऑफ दिस फिनोफ्थलीन, एंड जैसे ब्रेक हो जाएगा, नाउ यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर 4 डजंट हैव द quinonoid nucleus. This structure 4 does not show the tautomerism, and अगर structure 4 में tautomerism नहीं है तो क्या ये कलर देगा according to this quinonoid theory? नहीं सर। No. नहीं देगा. So that is the reason. No, sir. That is the No, reason sir. the phenolphthalein again converts to colorless at a pH above 13 or near to 14. समझ में आया आंसर? ओके Okay. यस हाँ सर। सर। So हाँ, that is sir. what about the quinonoid theory? क्या बोलता है quinonoid theory? The red color in alkaline solution is due to the quinonoid nucleus. जो phenolphthalein colorless color देता है वो किसकी वजह से आता है? quinonoid nucleus, tautomeric structure की वजह से, with the resulting increased possibility of resonance between the various ionic form. ठीक है, now आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. एक और एग्जाम्पल है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए. दिस इज एजोडाई, ठीक है, मिथाइल रेड, यू कैन रिप्रेजेंट इट इज इन एजोडाई. तो ये इनिशियल फॉर्म है जो कि येलो कलर है. इफ़ यू ऐड एसिड, व्हाट विल हैपन? अगेन इट विल डेवलप द क्विनोनॉइड न्यूक्लियस, ठीक है, इट विल डेवलप द रेजोनेंस. नाउ यू कैन सी यहाँ पे रेजोनेंस आ गया. एक बार इस एन के ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे देखो अभी इस एन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं है, एंड दिस टू स्ट्रक्चर आर एग्जिस्ट इन अ रेजोनेंस, ठीक है. और इस तरीके से ये जो रिंग है वापस क्या बनाती है? दिस रिंग इज अगेन फॉर्मिंग द क्विनोनॉइड न्यूक्लियस, ठीक है, क्विनोनॉइड न्यूक्लियस तैयार हो रहा है. सो इस तरीके से यू कैन एक्सप्लेन दिस ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल. समझ में आया? सो दैट इज व्हाट अबाउट द क्विनोनॉइड थ्योरी. Got the point? जी सर। यस सर। यस सर. हाँ सर. So lastly, pH range अभी हमने इसके ऊपर बात की थी, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं. So the observed color of the two color indicator is determined by the ratio of the concentration of ionized and unionized form. हमने देखा था कि अगर रेशियो 10/1 हो गया और 1/10 हो गया तो what will happen? The observable color changes are however limited by the ability of human eye to detect the changes of color in mixture.
So this is particularly difficult where one color predominates, and in practice is almost impossible when the ratio of the two form exceed 10 to 1. ठीक है, तो जब रेशियो ना उससे ज़्यादा हो जाता है 10 to 1, तो हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा कलर है, तो इसलिए हम एक ही कलर देखते हैं तब। लेकिन जब रेशियो इससे कम रहेगा 1 और 10 के बीच में, तो हमारे बीच में एक मिक्स कलर दिखाई देता है इंडिकेटर का। ठीक है, so all these points are nothing but explaining these only. Thus the limit of the visible color change will be represented by introduction of the term log 10 for log of ionized and unionized concentration in above equation. So pH will lie in a range pKin plus 1 minus 1. The average color change interval of the indicator is therefore about 2 pH unit. The observed color changes within the indicator range are seen as a gradual change of the tint or the shade which ranges from one extreme color to other. The shade of the color is independent of the amount of indicator present, but the use of too much indicator should be avoided as the slight changes are then more difficult to detect. तो अगर आप इंडिकेटर बहुत कम यूज़ करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व कलर चेंजेस देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिकेटर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, योर आई कैन नॉट परसेप्ट दैट चेंजेस इन अ कलर। ठीक है, ऐसा होता है। इसीलिए इट इज़ रिकमेंडेड दैट कि आप जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं टाइट्रेशन में, इट शुड बी इन अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, एंड लास्टली, with a single color indicator such as phenolphthalein, the intensity of the color is important and not the shade difference. The actual concentration of indicator is therefore significant and should be carefully controlled. Since the useful range of an indicator only extend over approximately 2 pH unit, it is essential to have a series of indicator available to complete the pH scale. Even जैसे मैंने अभी बताया इस केस में कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन का पीएच मेजर करना है तो आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। किसी सॉल्यूशन का पीएच यूज़ करना है तो आप क्या यूज़ करते थे, लिटमस पेपर यूज़ करते थे। इवन एक कंसेप्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड मिक्स इंडिकेटर कंसेप्ट। देयर इज़ ऑल्सो वन कंसेप्ट दैट इज़ कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म, यूनिवर्सल इंडिकेटर? Yes, sir. So what is the use of this universal indicator? This universal indicator is used to determine any pH among from 1 to 14. मीन्स अगर आपके पास में कोई भी सॉल्यूशन है उसका pH आपको फाइंड आउट करना है, सो व्हाट यू हैव टू यूज़ दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर, एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर विल शो यू द कलर। वो क्या शो करता है, कलर शो करता है, एंड दैट कलर रिप्रेजेंट व्हाट विल बी द pH। एग्जाम्पल, अगर थोड़ा सा रेडिश टाइप का कलर रहता है तो हम बोलते हैं वो एसिडिक टाइप में रहता है, वो पूरा शेड के साथ मैच करता है। मैं चेक करता हूँ अगर मुझे कुछ मिलता है तो। ऐसा एक पूरा चार्ट आता है। You can see this my screen ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। See this, अगर मैं बोला पूरा रेडिश टाइप रहेगा तो इट इज़ इन एसिडिक टाइप, थोड़ा सा ग्रीनिश है तो न्यूट्रल है, एंड इफ इट इज़ इन अ ब्लू साइड देन इट इज़ अल्कलाइन, एंड शेड मैच करना है। मीन्स आपको क्या करना है, यू हैव टू, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ अ पेपर। तो जैसे आपका लिटमस पेपर रहता है, इसी तरीके का एक पीएच पेपर आता है। सो व्हेन यू ऐड अ पीएच पेपर इनटू योर सॉल्यूशन, द पीएच पेपर क्या करेगा, कलर चेंज करेगा। द कलर सिग्निफाइज व्हाट विल बी द पीएच। अगर वो पीएच पेपर येलो हो जाता है तो यू कैन चेक वेदर इट इज़ दिस 2 pH और 3 pH येलो, है ना। अगर वो ग्रीन होता है तो उसको मैच करना है, ये कौन से कलर के साथ मैच होता है ग्रीनिश में। ब्लू होता है, पर्पल होता है, तो कौन सी साइड में मैच होता है वो आपको चेक करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कलर यू कैन आइडेंटिफाई कि वो यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा कलर दे रहा है, मीन्स क्या पीएच है। ठीक, सो दैट्स अबाउट द यूनिवर्सल इंडिकेटर। वन असाइनमेंट इज फॉर यू, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, मीन्स कौन से चीज़ों को मिक्स करके यूनिवर्सल इंडिकेटर क्रिएट किया जाता है। So that's all. Thank you.
for various theories of acid base Okay, sir. indicator. Any questions? So welcome. सर वो कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर सर सिर्फ मतलब जब ब्रोक डाउन होता है तो वो फेनोल्फथालीन में ही होता है कि और बाकी केस में भी होता है? नहीं, खास करके फिनोल्फथलीन में ही देखा गया है, ठीक है, और बाकी की इसमें भी हो सकता है, सपोज ऐसा कुछ हुआ है तो इन बुक व्हाट वी हैव लर्न विद सम ऑफ द एग्जांपल, हम बहुत सारे एग्जांपल एक्सप्लोर नहीं करते बिकॉज वी आर नॉट डूइंग अ रिसर्च इन दैट एरिया, ऑल्दो यू कैन एक्सप्लोर, ठीक है। तो बुक में जो हम कुछ 4-5 एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो उसमें से वन एग्जांपल इज द ऑफ द फिनोल्फथलीन विच शोज सच अ टाइप ऑफ बिहेवियर. Otherwise, for other indicators, you have to explore the data again. You have to go to research papers, publications and all that. कि दूसरे indicators में भी ऐसा होता है क्या? ओके सर. सर एक क्वेश्चन था सर मेरा. Yes. सर पीएच पेपर में से क्या यानी किस चीज से बनता है या तो उसमें यही तो क्या मैंने कंटेंट है सर, assignment उसमें दिया से ना मैंने थ्योरी क्या है आपको. सर? मैंने यही नहीं तो सर, assignment मैंने दिया ना उसके आपको. हाँ सर वो मैं समझ गया सर आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर का. बट मेरा क्वेश्चन सर ये है कि सर मीन्स उसके अंदर में होता क्या है कि वो कलर चेंज करता है अपना. यही रहते हैं सारे इंडिकेटर्स रहते हैं, ओके सर. वो इंडिकेटर से ही बना रहता है. तो नाउ यू नो ना इंडिकेटर कौन सा कलर कब कहाँ देता है, बराबर है. तो इंडिकेटर का ऐसा एक मिक्सचर क्रिएट किया गया है कि एट दैट पर्टिकुलर पीएच ये इंडिकेटर काम करेगा, एट दैट पर्टिकुलर यानी 14 पीएच के साइड ये वाला इंडिकेटर काम करेगा. ओके, जब न्यूट्रल रहेगा तो दिस इंडिकेटर विल वर्क. तो इट इज़ अ ब्लेंडिंग ऑफ दैट इंडिकेटर्स. ओके सर. So you find out which indicators are they are present. ओके सर. Yes, any other questions?